بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسلني ربي بصلاة الارحام وقصر الاوسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا انسابكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة القاتل. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جو بابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کی توبہ کو اس نے قبول کی، اور اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو سب سے پہلے پانی پر پھیلایا، اور اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے تعصب پرستی کی وجہ سے کنویں میں ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنا۔ اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو رکھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں، زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں یحییٰ عطا کیا، اور وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دشمن کے ناپاک سازشوں سے بچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں راستہ بنایا، اور اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر رکھا، اور اللہ رب العالمین کی ذات و ذات ہے جس نے کائنات کے امام، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے ظلم و تشدد سے اللہ رب العالمین بچاتا رہا۔ اس رحمان و رحیم کی تعریف و توصیف کے بعد تمام پیغمبروں پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری رسول، سارے نبیوں کے سردار، رحمت للعالمین، شافی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد پر، تمام صحابہ کرام پر اور ان کے آل و اولاد پر، تابعین، تبع تابعین پر، اور اللہ کے اولیاء کرام پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم، نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے والے دنیا کے تمام بزرگوں پر، نوجوانوں پر، پیارے بچوں پر، میری پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں پر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں شامل حال ہو۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، مجھے یہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چند منٹ کہنے کی اجازت بڑے علماء کرام کے سامنے مجھے دی گئی ہے۔ ذمہ داران جمعیت و احباب جماعت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے،
आबाद रखे, नजर बस से बचाए। अल्लाह आप लोगों के मालों में, रिश्तों में, उम्रों में, औलादों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वालों को अल्लाह को उनके घरों को दे आबाद अता फरमा। अल्लाह तेरे घरों से जो भी दूर है अल्लाह उनके दिलों में तेरा डर, तेरा खौफ पैदा करके अल्लाह के घरों में आकर अल्लाह के जिक्र व अस्कार करने की तौफीक और हिदायत नसीब अता फरमा। मौजूद हज़रात, आज मैंने छोटी जबान से एक छोटा उन्वान मैंने मुंतखब किया है। वो उन्वान रिश्तेदारी में जोड़ का मामला। रिश्तेदारी में प्यार और मोहब्बत के मामले के ताल्लुक से मैंने कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा मैंने पढ़ा है और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अरसलनी रब्बी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे रिश्तेदारों में सिला रहमी करने के लिए, रिश्तेदारों को जोड़ने के खातिर, रिश्तेदारों में प्यार और मोहब्बत का मामला पैदा करने के खातिर अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना करके भेजा और बुतों की इबादतों से मना करने की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सबसे पहले चीज जो है तौहीद है। तौहीद के बाद जो आदमी सारे दारोमदार अमान का तौहीद पर कायम मकाम है। अगर तौहीद की बात से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को जोड़ने के मामले को तौहीद से पहले रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके क़ल्ब अतहर पर जब पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ जब नाज़िल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, डर करके मेरी और आपकी उम्मत की माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए, कहा कि खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो, कंबल उड़ा दो, मुझे डर लग रहा है। मेरी और आपकी उम्मत की माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली इस बात की देती है, कल्ला वल्लाह ला युज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को बेकार जाने नहीं देगा। इसलिए कि आप रिश्तेदारों के साथ प्यार और मोहब्बत का मामला सिखाते हैं, रिश्तेदारी में जोड़ने का मामला आप दरस देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उम्मत की माँ हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक बार बाहर में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तोशा लेकर जा रही थे, अल्लाह ताला ने जिब्राइल को बुलाया, जिब्राइल मेरे पास आओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने से पहले मेरा सलाम सुनाओ। जिब्राइल अमीन कहते हैं, अल्लाह का सलाम, मेरा सलाम हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सुनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करो। बहुत हज़रात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जब सन 8 हिजरी की बात है, मक्का जब फतह हुआ तो लोग मुसलमानों का बोलबाल था, मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। उस वक्त अपने भी थे, गैर भी थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताए, तकालीफ दिए, वसीयतें पहुंचाई, तो सारे लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, अजब नमूना का माहौल महसूस कर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तस्बिरु यौम, आज डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, मानने वालों के लिए भी रहमत है, ना मानने वालों के लिए भी रहमत है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, आज के दिन किसी से बदला नहीं लेंगे, मारने वालों का जवाब मारने मार से नहीं देंगे। और घबरा, उसके बाद सबसे पहली जंग जो हुई जंग बदर,
मुसलमान और गैर मुस्लिमों के दरमियान ये जंग पेश आने के बाद 70 गैर मुस्लिम बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 लोग कैदी बन करके मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में पेश किए। तो उस वक्त उनके चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जो भी मुसलमान नहीं हुए थे, गैर मुस्लिमों में थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के बाद से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का गुजर होता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे से जाते जाते देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से पटनी में चावल के दाने पकने की आवाज की तरह आवाज आ रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि उस जमाने में लोग पैरों की बेड़ियां डाल करके रखते थे। आज अगर कोई गलत काम करता है, मुसलमान हरकत करता है, उनके हाथों में बेड़ियां हथकंडे डाल दिए जाते हैं। तो उस वक्त 70 लोगों को बेड़ियों में डाल करके झगड़ा गया था। उनके चाचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ये मेरे चाचा नहीं बल्कि मेरे बाप के इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान करते हैं, अल्लाह के नबी आप रोने की जरूरत नहीं है, आप अपने चाचा के पैरों से बेड़ियों को खोल दो ताकि आपके चाचा आजाद हो जाए। रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे चाचा को छोड़ने के बाद अगर छोड़ देंगे तो बाकी 60 पर 9 लोगों को भी छोड़ देना पड़ेगा। तो सहाबा इकराम के मशवरे से चाचा की मोहब्बत में, रिश्तेदारी की मोहब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 सारे लोगों को भी अपने चाचा को जैसा आजाद कर दिया, बेड़ियों से तमाम लोगों को भी आजाद कर दिया। रिश्तेदारी के मोहब्बत में नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब जंग हुनैन का मामला आया, बहुत बड़ी जंग, जब मुसलमानों की शिकस्त हो रही थी, पहली मर्तबा मुसलमानों को हार हो रही थी जंग हुनैन में, बाद में अल्लाह ताला ने ऐसी फतह व नुसरत कामयाबी से अल्लाह ताला ने नवाजा जंग हुनैन में। उस वक्त बहुत सारा माल मुसलमानों के हाथ में आया, हजारों सोने और चांदी के पैसे सिक्के सब जमा हो गए, बहुत सारी बकरियां भी आ गई। तो उस वक्त 6,000 से ज्यादा लोग कैदी बन करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में आए। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन तमाम कैदियों को लेने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आने के लिए गए। तो उसमें एक ऐसी कैदी औरत थी, उनका नाम शैमा बिन्ते हारिस, उनका नाम शैमा बिन्ते हारिस था। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन है, जिस माँ का दूध अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया था, शैमा बिन्ते हारिस ने उनकी माँ का दूध पिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के सामने शैमा बिन्ते हारिस बयान करते हैं, ऐ सहाबा, मुझे अकेले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, पूरी जमात की शक्ल में मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत ले जाना, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रज़ाई भाई हैं। सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलने के बाद उनके अकेले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, आप मेरी बहन होने की सबूत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में खेल रहे थे, शैमा बिन्ते हारिस के हाथ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों से काटा। शैमा बिन्ते हारिस ने बताया, अल्लाह के नबी, आपने बचपन में खेलने के दौरान मैंने आपको उठाने के लिए गई
पाक के दांतों से मुझे काटा था, ये निशानी देखी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फील कर लिया, बात को मान लिए। मानने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर चादर थी। सारे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो चादर के लिए तड़प रहे थे। हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चादर मुझे अता करे, ये चादर मुझे दे दे, ये चादर मुझे वो लेने के लिए तड़प रहे थे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। शैमा बिन्त हारिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से चादर को निकाला, जमीन पर बिछाया, कहा कि शैमा बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। दुनिया के सारे लोग मेरी इज्जत एहतराम करते हैं। शैमा, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, मैं आपकी इज्जत और एहतराम करता हूँ कि आप मेरी रज़ाए बहन होने की वजह से। और शैमा बिन्त हारिस से कहा, आप जो चीज पूछना चाहते हैं पूछ लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी रज़ाए बहन हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैमा बिन्त हारिस से कहा, अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको इख्तियार है, या तो आप अपने कबीले के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए इख्तियार है। शैमा बिन्त हारिस ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने कबीले के साथ जाना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कबीले के साथ जाने की इजाजत दे दी। और जाते जाते शैमा बिन्त हारिस ने अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ 6000 से ज्यादा खैदी बनकर के आपकी खिदमत में आने के लिए तैयार हैं। आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करके सारे खैदियों को मेरे वजह से आप रिहा कर दो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, सारे अपने बहन की मोहब्बत में सारे खैदियों को आजाद करें। और ये रिश्तेदारी का मामला, रिश्तेदारी ये दरअसल अल्लाह के अर्श से मुअल्लक़ है, मुअल्लक़तुन बिल अर्श, अल्लाह के अर्श के साथ लटकी हुई है। और वो रिश्तेदारी अल्लाह से कहती है, अल्लाह जो मुझे जोड़ करके रखा है तुम मुझे जोड़ करके रख, अल्लाह जो हमको काटना चाहता है तुम उनके साथ कट जा। ये रिश्तेदारी कहती है। बहुत बदरा हम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े बड़े साहबा है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बड़ी महफिल में ऐलान किया। क्या ऐलान किया? इस महफिल में अपने रिश्तेदारों के साथ जो बात नहीं बनती है वो इस महफिल से उठ करके चला जाए। सारे महफिल से एक आदमी उठ करके चला जाए। उनके खाला से उनकी बात नहीं बनती थी, खाला और उनके दरमियान नाबरावत थी, बातचीत नहीं थी। वे अपने खाला को मना लिए, फिर आए। उसके बाद अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आप ये बड़ी महफिल में क्यों ये बात कही? तो अल्लाह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जिस महफिल में रिश्तेदारी के साथ नाबरावत करने वाला तोड़ने वाला है उस महफिल में अल्लाह की रहमत नहीं आती, उस रहमत से उस जमात से अल्लाह की रहमत दूर हो जाती है। हम आज हमारे माँ से हमारी बातें बनते नहीं है, बाप से बातें बनते नहीं है, एक भाई दूसरे भाई में बातचीत नहीं है, अड़ोस पड़ोस में चाचा से बातचीत नहीं है, दादा दादी से बातचीत नहीं है। हम अल्लाह की हुकूक के बाद दोनों चीजें वो अलग है। अगर आदमी हाजी है, उम्रा कर चुका है, 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, सब कुछ करता है, लेकिन अपनी बहन से बात नहीं करता, अपनी माँ से बात नहीं करता। रिश्तों में सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता क्या है? माँ बाप का रिश्ता है। माँ बाप वो रिश्ता है जो दुनिया में तुमको लाने का जरिया बन चुके हैं। बहुत खतरा इतने लोग हैं, वो नौजवान लोग जो शादियां हो जाने के बाद बीवी की मोहब्बत में, बीवी की लाड़ और प्यार में आकर के अपने माँ बाप को ले आकर के कहीं यतीम खाने में छोड़ करके आते हैं। माँ बाप के साथ उसने सुलह नहीं करते। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के पैरों की तली जन्नत है।
अगर माँ बाप अगर दोनों नाराज है तो हमें जन्नत को हासिल नहीं कर सकते, जन्नत को हासिल नहीं कर सकते। बहुत हजरात, इस बड़ी महफिल में जहाँ तक मेरी आवाज औरतों में हो, नौजवानों में, बुजुर्गों में, अगर मेरी आवाज अगर गूंज रही है तो अल्लाह का वास्ता दे करके मैं उनको कहता हूँ कि पहली फुर्सत में माफी मांग ले, राजी हो जाए, जब रब तुम्हारी बात कबूल करेगा। अगर तुम अपने लोग मस्जिदों में आते हैं, नमाज में करीब खड़े हो जाते हैं, कंधे से कंधा, लेकिन दिल से दिल लगाने को तैयार नहीं, दिला दूर हो चुके हैं, दिलों में कदूरत है, कीना है, कपट है, बज़्ज़ है, अदावतें हैं, लेकिन इतनी गंदगी रखने के बावजूद हमारी इबादतें कैसे कबूल होती हैं, हमारी दुआएं कैसे कबूल होती हैं। बोलो घबराहट, माँ बाप एक बड़ी नेमत है हमारे लिए। माँ वो माँ है जो 2 साल का खून को गोद की शक्ल में तब्दील करके अपने औलाद को सीने से लगा करके दूध पिलाया। और वो बच्चे जब रात में पेशाब करते हैं, माँ बच्चों को पेशाब की जगह से हटा करके खुद पेशाब की जगह खुश हो जाती है। ये माँ की ममता की मिसाल और गौर करने की बात है, सोचने की बात है। जो हमें एक मुसलमान अगर 3 दिन से ज्यादा अगर बातचीत छोड़ देता है, नाराज होता है, उसके बाद अगर अपनी गलती रखने के बावजूद भी दूसरों में मिलता नहीं है, यही अदावत बहुत कीना कपट रखता है, तो अगर मर गया तो जब जाकर के वो अल्लाह ताला की नाराजगी में रहेगा, अल्लाह ताला के फैज़ गज़ब में रहेगा। सोचने की बात है, गौर करने की बात है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल होने से पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कहते हैं कि मिस्र अभी फतह नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिस्र यानी इजिप्ट, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि वहाँ ये लोगों के साथ नरमी का मामला करें, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी का मामला है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्के में और मक्के से मदीना गए और मक्के से मदीने से फिर मक्का आए, और मिस्र से क्या ताल्लुक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, जाने के दौरान दुश्मन फिरौन बादशाह उनके सारा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर हाथ रखा पूरे इरादे से। अल्लाह ताला उनके हाथ और पैर को शल कर दिया, फालिज की हालत बना दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हे तन्हा मांग करके अल्लाह की इबादत में है, वो दोबारा हाथ रखा तो वही उनसे दूसरी बीमारी में मुलविस हो गया। देखा कि ये औरत की शक्ल है, लेकिन किसी फरिश्ता या और की शक्ल में अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा है, तो उनकी खिदमत के लिए हाजिरा को अल्लाह ताला ने दिया। ये कौमी खिदमती खानदान की एक औरत थी। जब अल्लाह ताला ने सारा अलैहिस्सलाम को ले जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शादी करा दी, निकाह होने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की वफादारी को निभाने के लिए जंगल और बयाबान में ले आकर के छोड़ा, और उनकी औलाद, उनकी माँ अकेले, माँ और बच्चे दोनों अकेले थे। अल्लाह की जात पर भरोसा और इत्मीनान करते हुए 40 या 50 नस्लों के बाद अल्लाह के मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हजरत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और इब्राहीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये मेरी दादी लगते हैं। कौन? हाजिरा अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में दादी। वो ख्याल करते हुए मिस्र फतह होने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नसीहत करते हुए वहाँ के लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रखना, क्योंकि हमारा उनका रिश्तेदारी का मामला बहुत घबराहट। इतने दूर के साथ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारी का ख्याल करते थे। रिश्तेदारी में मोहब्बत और प्यार का पैगाम देने के लिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज भाई बहन से कई सालों तक बात नहीं करता,
माँ अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे अपने माँ बाप से बात नहीं करते, पड़ोस से जमात में मस्जिद में आने के बाद मिल करके खड़े हो जाते हैं, बाद में मस्जिदों के बाहर जाने के बाद उनकी गिल्ला शिकवा शिकायत, ये सारी चीजें अगर ये गिल्ला शिकायत शिकायत अगर हमारे अंदर है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो रिश्तेदारी के अंदर दरार पैदा करता है, दुश्मनी पैदा करता है, दूर रखना चाहता है, अल्लाह ताला उनकी कोई इबादत अपने यहाँ कबूल नहीं करता। बहुत गौर करने की बात है। वक्त तो कम है। हमारे बड़े आलिम माशाअल्लाह बहुत दूर से आए हैं। बड़े उलमा के सामने छोटी जबान से छोटे अल्फाज कहना मैं अपने आप को बस खत्म महसूस करता हूँ और परवरदिगार आलम से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपने रिश्तेदारी में जोड़ने का मामला रखने की तौफीक और हिदायत नसीब फरमाए, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इत्तेहाद इत्तेफाक और खुशूखुशी के साथ एकजहती के साथ अल्लाह ताला मुसलमानों को रखे। अल्लाह नौजवानों की हिफाजत फरमाए, बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए, बच्चों की हिफाजत फरमाए, इस्लामी माँ और बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह मस्जिदों को आबाद रखे, मस्जिदों को आबाद करते हैं अल्लाह उनके घरों को बेआबाद अता फरमाए। अल्लाह मस्जिदों की भी हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, अल्लाह मुसलमान नौजवानों की हिफाजत फरमा, अल्लाह बुजुर्गों की बच्चों की सबकी भी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप अभी दुनिया में जिंदा है उनके औलाद को उनके माँ बाप की कीमत जान कर उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ब्रों को नूर से मुनव्वर अता फरमा। अल्लाह उनके क़ब्रों को जन्नत फिरदौस अलाइन का फर्श बिछा दे, जन्नत की खिड़की खोल दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत और सिफारिश हमारे नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।